बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा, ऊंचा कौन और नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारें, मत खींचो तुम दीवारें इंसानों के दरमियान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ओ महंत जी, ओ महंत जी, तुम महंत जी खोज रहे उन्हें मोती की लड़ियों में, उन्हें मोती की लड़ियों में। कभी उन्हें ढूंढा है क्या भूखों की अंतड़ियों में, गरीबों की इन अंतड़ियों में। दीन जनों के असुवन में, दीन जनों के असुवन में क्या कभी किया है स्नान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। क्या जाने बड़े किस प्यार भेष से में बाबा मिल जाए भगवान मिलना रे। क्या जाने किस भेष सबसे, में बाबा मिल जाए भगवान रे। Very loving children of CMS Chowk campus. A very disciplined, very wonderful children. Highly successful children. I would like to commend your branch for manifold achievement of your branch. This branch is the one which started going into the international field, sending the first robot, and that opened the window to the world. And thereafter the Quanta International Festival,
which Bedi Didi started, and that was the first international event. And thereafter other branches followed, and many other branches started doing the international events. The result has successfully improved. The percentage of result has highly improved from the day when we started the journey of ICSE and ISC examinations, and today the results of Chowk branch are much ahead. So I want to congratulate respected Badi Didi, respected teachers, and also the children of this branch, who are really very hard working and very sincere children, who are really devoting to their studies and doing wonderfully well in studies as well as in examinations. Dear children, we were just saying a prayer, school prayer. I would like to explain to you the meaning of the prayer. It says, I bear witness, O my God, that Thou hast created me for two things. Number one, to know Thee, and number two, to worship Thee. There are two things for which God has created each one of us. Number one, to know Him. Number two, to worship Him. The question is, how to know Him? He is not seen anywhere. You cannot see Him where He is. And you cannot talk to Him. You cannot meet Him. You cannot see Him. Still, it is a purpose in life to know Him. And also, how to worship Him. You don't know where He is. Where do we go to worship Him? He is not seen anywhere. So how to worship Him? Yet, it is a purpose in life to worship Him. Therefore, we have to understand what is the meaning of knowing God and what is the meaning of worshipping God. Knowing God means knowing the thoughts of God, the values that He has sent to us, knowing those teachings which He has sent from His kingdom through the manifestations of God for our benefit. So knowing the teachings of God means we know how great He is, how wonderful are His teachings, how great teachings He is giving us. So by knowing those teachings, we know God. And what is worshipping? Worshipping means obeying those teachings is the worship of God. So knowing the teachings of God and obeying the teachings of God is the meaning of the first line, that I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. Know Thee means know His teachings, which He has sent to holy teachings like Holy Quran, Holy Bible, Holy Guru Granth Sahib, Holy Tripatak, Holy Kitab Ekdas, Holy Kitab Avesta, Holy Bhagavad Gita. All these books have been sent by one God. These are all holy books. They are all revealed books of God. These books are unerring. There is no mistake in it. If all the professors of the entire world want to find out a mistake in Quran or Bible or Gita or Guru Granth Sahib, they cannot find one. Because these are the words which are unerring. They are the words of God. These are the views of God. These are the thoughts of God. Knowing the thoughts of God means knowing teaching, knowing God. What kind of God He is, we can make out from the teachings of God. God is so great. He has given such beautiful teachings for our benefit, for our growth, for our success in life. He has given all these things, all these beautiful teachings, so that we can be happy, we can be prosperous, we can be successful in life. Our life becomes meaningful.
So He has sent all these teachings for our benefit, and He has sent through various manifestations of God like Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, Nanak, Zoroaster, Moses, Abraham, Baha'u'llah, Mahavir. All these messengers of God have come from one God, and God has sent His teachings to these messengers. These are the teachings for the whole of humanity, not for a particular class of people, because they are from God. God cannot be God of Hindus. God cannot be the God of Muslims or God of Christians or God of Buddhists. God is only one. He belongs to all. He has made the sun. He has made the moon. He has made the sky. He has made this earth. He has made the wind. He has made the water. He has made everything. He has made all the people of this world. He is the creator. He doesn't discriminate. His teachings are for the whole of humanity. So Bhagavad Gita or Quran or Bible or Guru Granth Sahib or Tripitak or Kitab Vedas, these are the teachings of one God. He has sent them from time to time, from place to place, in age to age, according to the need of the time, according to the need of the place. He has sent these teachings. These teachings came into the particular language of that area. They were translated into many languages and spread all over the world. All these teachings have come from one source. So there is only one source. There is only one God. All the teachings have come from one God, and they are for the whole of humanity. Quran is not only for the Muslims. Quran is for the whole of humanity. Gita is for the whole of humanity. Bible is for the whole of humanity. Guru Granth Sahib is for the whole of humanity. Kitab Vedas, Tripitak, everything is for the whole of humanity. Because God has sent these books. And God belongs to the whole of humanity. Dear children, to know the teachings of God means knowing God. That means all the teachings that have been sent by one God from time to time, from place to place, according to the need of the time. Knowing those teachings means knowing God. And then obeying those teachings is the worship of God. So dear children, we have been created by God for two things: to know Thee and to worship. मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। दो कारणों से तूने मुझे उत्पन्न किया है। एक तो ये कि मैं तुझे जानूं, और दूसरा ये कि मैं तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानी तेरी शिक्षाओं को जानना, जो तूने युग युग में अपने दिव्य अवतारों के माध्यम से हमारी सबकी भलाई के लिए भेजी, बिना किसी भेदभाव के। ये शिक्षाएं सारी मानव जाति के लिए हैं। और दूसरे, तेरी पूजा करूं। पूजा करने का तरीका एक ही है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जो शिक्षाएं परमात्मा ने कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, त्रिपिटक में दी हैं, उन शिक्षाओं को समझूं, उनके अर्थ को समझूं, उनकी गहराई में जाऊं, उनका श्रवण करूं, मनन करूं, निधिध्यासन करूं, उन पर रिफ्लेक्ट करूं। 1 hour रिफ्लेक्शन इज प्रेफरेबल टू 70 years of pious worship। 70 वर्षों तक यदि हम रामायण का, कुरान का और बाइबल का पाठ करें, उसका कोई लाभ नहीं है। 1 घंटे हम एक रामायण की चौपाई ले लें, कुरान शरीफ का एक कोई हम आयत ले लें, गुरु ग्रंथ साहब की एक साखी ले लें, बाइबल का एक मंत्र ले लें, गीता का एक मंत्र ले लें, उसके अर्थ पर विचार करें, उसकी गहराई में जाएं, उसके मंतव्य को समझें, प्रभु क्या चाहता है, और उसे जीवन में अपनाएं। वही कार्य करें जो प्रभु हमसे चाहता है। ये पूजा है, और वो
प्रभु की इच्छाओं को जानना, प्रभु को जानना। प्रभु को जानने के मानी प्रभु की शिक्षाओं को जानना जो युग युग में आई है। इसके लिए रामायण में कहा है कि जब जब होय धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तो जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और इन लोगों की संख्या बढ़ जाती है जो देवताओं की राह पर नहीं चलते, असुर अधम जो धर्म की राह पर नहीं चलते, और अभिमानी जो ईश्वर के सामने भी घमंड जताते हैं। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, तो धरती पर दुख बढ़ जाते हैं, मनुष्य संकट में आ जाता है। तो परमात्मा कृपा करके पुनः जन्म लेता है धरती पर, किसी विविध रूप में आता है, और वो एक ही परमात्मा है जो कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी नानक और ईसा के रूप में। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तीन तरह के लोग बढ़ेंगे। असुर जो देवताओं की राह पर नहीं चलते, अधम जो धर्म की राह पर नहीं चलते, अभिमानी जो ईश्वर के सामने भी घमंड जताते हैं। तो जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है धरती पर, तो संतुलन समाप्त होता है और लोगों को दुख आते हैं। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु, एक ही परमात्मा है, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, वही परमात्मा विविध रूप धारण करके, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी मोहम्मद और ईसा और नानक के रूप में, कभी बाब और बाहुल्ला और जोरास्कर और मोजिद और अब्राहम और भगवान महावीर के रूप में, वही परमात्मा युग युग में आता है। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु, तब तब प्रभु, एक ही परमात्मा, तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा नित्य सज्जन पीरा, सज्जनों की पीर को हरने के लिए युग युग में दिव्य लोक से अवतार आते हैं। यही बात गीता में भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो कहते हैं युग युग में हम आते हैं टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन एंड टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे। धर्म संस्थापनार्थ, जब जब धर्म के प्रति मानव के जीवन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, यदा यदा हि धर्म से है ग्लानिर्भवति भारत, मानव जीवन में ग्लानि अरुचि हो जाए, आदमी न प्रभु इच्छाओं को जानने की इतना ललक हो, न उन पर चलने की, और रिचुअल करने लगे, कर्मकांड करने लगे, तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं। तो यदा यदा हि धर्म से, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारत है, तो अभ्युत्थान धर्म से, तब मानव के मन में धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म की भावना को जागृत करने के लिए, धर्म क्या है? प्रभु इच्छाओं को जानना और उनकी शिक्षाओं पर चलना, ये धर्म है। तो इस धर्म की भावना को विकसित करने के लिए, तो यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, तो अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को बार बार सृजित करूँगा, तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्या करूँगा आके? परित्राणाय साधूनां, साधु प्रवृत्ति के लोगों का परित्राण करूँगा, कल्याण, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका मैं विनाश करूँगा। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। फिर कहते हैं धर्म स्थापनार्थ नहीं, स्थापना में दो शब्द और जोड़े भगवान ने, सा आधा सा और आधा ना, और उसको कह दिया स्थापना की जगह संस्थापना, संस्थापित करने के लिए। जो संस्था स्थापित हो चुकी है उसमें नए नए सामाजिक नियम देने के लिए,
तो जो धर्म पहले से चला आ रहा है उसके लिए नए नए नियम देने के लिए धर्म एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उन पर चलना, और कोई धर्म नहीं है। धर्म माने होते कर्तव्य, मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उन पर चलना, इसी को धर्म कहते हैं। जब ये सृष्टि बनाई परमात्मा ने और एडम और ईव को बनाया तो पहला उद्देश्य यही दिया कि तुम्हारा प्रसन्नता का राज एक ही होगा, धर्म की राह पे चलना, और धर्म तुम्हारा एक ही होगा, प्रभु इच्छाओं को जानना और उन पर चलना। हम तुम्हारे सृजनहार हैं, हमारी इच्छाओं को जानना, उन पर चलना, और ये भेद, ये बात तुम अपनी संतानों को बताना कि हमारी इच्छाओं को जाने, उस पर वो चले। तो जो हमारी इच्छाओं पर जानकर जो चलते हैं वो सुखी होते हैं। तो ये बात तुम अपनी संतानों को बताना और उनसे कहना वो अपनी संतान को बताए, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात बताई जाए कि ईश्वर की इच्छाओं को जानकर उन पर चलने से हम सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, सफल होते हैं, और कोई सफलता का सुख का मार्ग नहीं। तो प्यारे बच्चों, I bear witness to my God that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee। मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूँ और तेरी पूजा करूँ। इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तेरी शिक्षाओं को जानूँ और उन पर चलूँ। I testify at this moment to my powerlessness and to Thy might। अब मैं अपनी शक्तिहीनता और तेरी शक्तिमानता की दुहाई देता हूँ। मैं कितना शक्तिहीन हूँ और तू कितना शक्तिशाली है। शक्ति की पहचान क्या है भगवान की? बहुत शक्तिशाली है। पहचान यह है कि उसके जो उसे जान जाते हैं उनकी आत्मा में इतना बल आ जाता है, कहते हैं कि whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat its purpose। जो कोई मुझे पहचान लेगा उसे धरती और आकाश की कोई भी शक्ति मेरी सेवा से रोक नहीं सकती। इतना आत्मा का बल उसमें आ जाए। राम को जचा कि बन जाना उचित होगा। माता श्री ने कैकेयी जी ने वर मांगे हैं, तो जो बन जाने का निर्णय किया कि ईश्वर की राह है, ये ईश्वर का यही आदेश है कि वचन का पालन हो, बन जाने का निर्णय किया तो सबने रोका। माता कौशल्या ने रोका, अयोध्या वासियों ने रोका, स्वयं उनके पिताजी ने रोका, लेकिन राम रुके नहीं। आत्मा का जब बल आता है तो आदमी सब कुछ छोड़ के ईश्वर की राह पर चले। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप, 4C, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder
that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।